Hello students of class 7th. Now we are going to read your book Social Science History chapter 3rd The Delhi Sultanate. In this chapter we will learning some objectives like this. Number 1, the slave dynasty means Ghulam Vansh. Number 2, Tughlaq dynasty means Tughlaq Vansh. Number 3, the Sayyid dynasty means Sayyid Rajvansh. Number 4, the Lodi dynasty means Lodi Rajvansh. Number 5, divisions of the Sultanate means Sultanate का विभाजन. Number 6, declines of the Sultanate means Sultanate का पतन. Let's start this chapter. Words to know. चहलगनी, a group of 40 Turkish novels. 40 तुर्की रईसों का एक समूह. Commemorate means स्मरणोत्सव. To remind people of an important event from the past with a special action or object. किसी विशेष क्रिया या वस्तु से लोगों को अतीत की महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाना. सिजदा, a system in which a person had to kneel and touch the ground with his forehead before the sultan. एक प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति को सुल्तान के सामने घुटने टेक कर अपने माथे से जमीन को छूना पड़ता था. सल्तनत, a kingdom under the rule of सुल्तान. ए सुल्तान के शासन के अधीन एक राज्य. मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरन इन 1192 AD. मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया. The result of the battle was the beginning of the Afghan-Turkish rule in India. लड़ाई का परिणाम भारत में अफगान तुर्की शासन की शुरुआत थी. The Afghan-Turkish rule lasted for 15 years. However, the successors of Muhammad Ghori assumed power in 1206 and ruled India successfully till 1526. अफगान तुर्की शासन 15 वर्षों तक चला. हालांकि मोहम्मद गौरी ने के उत्तराधिकारियों ने 1206 में सत्ता संभाली और 1526 तक भारत पर सफलतापूर्वक शासन किया. Since these rulers called themselves as sultans, this period in the history of India is called as the Sultanate period. ये शासक खुद को सुल्तान कहते थे, इसीलिए भारत के इतिहास में इस अवधि को सल्तनत काल कहा जाता है. This period witnessed the rule of 5 dynasties of the Turkish Afghan origin. इस अवधि में तुर्की अफगान मूल के 5 राजवंशों का शासन देखा गया. These dynasties are described below. इन राजवंशों का वर्णन नीचे किया गया है. The Slav dynasty 1206-1290 AD. गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक. The Turkish ruler depended heavily on specially chosen Slavs who were trained to excel in both military and intellectual spheres. तुर्की शासक विशेष रूप से चुने हुए दासों पर बहुत अधिक निर्भर था, जिन्हें सैन्य और बौद्धिक दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था. These slaves often rose up political and military ladder to become ruler of their land.
ये दास अक्सर अपनी भूमि के शासक बनने के लिए राजनीतिक और सैन्य सीढ़ी चढ़ते थे। The dynasty established by Avar was therefore also known as the slave dynasty and the ruler as the Mamluk Sultans of Delhi. Mamluk means slave. ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश इसीलिए दास वंश के रूप में भी जाना जाता था और शासक दिल्ली के मामलुक सुल्तानों के रूप में जाना जाता था, जिसे हम गुलाम भी कहते हैं। मामलुक का अर्थ होता है गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-10 CE। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 CE तक। Qutbuddin Aibak took over Muhammad Ghori's territories in India in 206 CE. कुतुबुद्दीन ऐबक ने 206 CE में भारत में मोहम्मद गौरी के क्षेत्रों को संभाला। Within a short period of time, he established his control over all the northern territories of India and established Delhi सल्तनत। थोड़े समय के भीतर उन्होंने भारत के सभी उत्तरी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन was the Sultan of King for 4 years. कुतुबुद्दीन 4 साल के लिए सुल्तान या राजा थे। During this period, he consolidated his existing territories. इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने मौजूदा क्षेत्रों को समेकित किया। He tried to set up an efficient administrative structure. उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक संरचना स्थापित करने की कोशिश की। Though he entirely ruled from Lahore and he later shifted his capital to Delhi. हालांकि उन्होंने शुरुआत में लाहौर में शासन किया, फिर भी उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। ऐबक was known as luck बख्श और द गिवर ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ऐबक को लाख बख्श या सैकड़ों और हजारों के दाता के रूप में जाना जाता था। He was also a keen builder. वह भी एक उत्सुक निर्माता था। He began the constructions of the famous कुतुब मीनार and the कुतुबुल इस्लाम मॉस्क। उन्होंने प्रसिद्ध कुतुब मीनार और क्वाबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू किया। He died in 1210 CE due to an accident while playing polo. पोलो खेलते समय दुर्घटना के कारण 1210 CE में उनकी मृत्यु हो गई। More to know. The iron pillar in the Qutub complex was constructed to ancient period. It has not rusted in over 1600 years. कुतुब परिसर में लोहा स्तंभ प्राचीन काल में बनाया गया था। यह 1600 वर्षों में जंगली नहीं था। The Turkish sultans had to face many problems. तुर्की सुल्तानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। There were repeated Mongol attacks from the north-west. उत्तर पश्चिम में मंगोल हमलों को दोहराया गया। The Rajputs and other defeated rulers tried to regain their independence. राजपूत और अन्य पराजित शासकों ने अपनी आज़ादी हासिल करने की कोशिश की। There were many conflicts among the Turks themselves. तुर्कों के बीच कई संघर्ष हुए। It took these sultans nearly 100 years to secure their positions in northern India before trying to expand their empire in the Deccan में अपने साम्राज्य का विस्तार करने
विस्तार करने की कोशिश करने से पहले इन सुल्तानों ने उत्तरी भारत में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए लगभग 100 सालों को ले लिया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। Iltutmish was the slave and the son-in-law of कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। He succeeded the throne and was conferred the title of सुल्तान। वह सिंहासन पर सफल हुआ और उसे सुल्तान की उपाधि से सम्मानित किया गया। He was known for efficient administrations। उन्हें कुशल प्रशासन के लिए जाना जाता था। इल्तुतमिश हैज़ द फॉलोइंग टू हिज क्रेडिट। इल्तुतमिश के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हिज आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड। उसकी सेना संगठित थी। नंबर 2, ही हैड द नोबिलिटी ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 40 कॉल्ड द चालीसा ऑफ चहलगनी। उनके पास कुलीनता थी 40 का एक चुनिंदा समूह जिसे चहलगनी की चालीसा कहा जाता था। नंबर 3, ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड इक्टस विच वर गिवन टू द नोबल्स एज सैलरीज। उसने साम्राज्य की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जिन्हें लख्ता कहा जाता था, जो कुलीनों को वेतन के रूप में दी जाती थी। नंबर 4, ही स्ट्रेन्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स विच प्रोटेक्टेड द एम्पायर फ्रॉम द मंगोल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत किया जिसने मध्य एशिया के मंगोलों से साम्राज्य की रक्षा की। नंबर 5, he introduced टंका सिल्वर coins and जीतल्स कॉपर coins। उसने टंका चांदी के सिक्के और जीतल तांबे के सिक्के चलाए। द कुतुब मीनार एट दिल्ली was completed by इल्तुतमिश। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। He also built a mosque and बदायूं and a tomb at दिल्ली। उसने बदायूं में एक मस्जिद और दिल्ली में एक मकबरा भी बनवाया। द रज़िया इंटरल्यूड 1236-39 CE। रज़िया इंटरल्यूड 1236 से 1239 CE। रज़िया सुल्तान द रज़िया इंटरल्यूड 1236-39 CE। रज़िया सुल्तान द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सक्सेड इल्तुतमिश। रज़िया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक इल्तुतमिश सफल रही। अकॉर्डिंग टू मिनहाज उस सिराज chronicles of the period, she was a great monarch, wise, a dispenser of justice and protector of her subjects, but born to the wrong gender। मिनहाज उस सिराज के अनुसार इस अवधि के कालक्रम के अनुसार वह एक महान सम्राट, बुद्धिमान, न्याय की एक विधाता और अपनी प्रजा की रक्षक थी, लेकिन गलत लिंग के लिए पैदा हुई थी। So in the estimations of men, all her virtues were worthless। इसलिए पुरुषों के अनुमान में उसके सभी गुण बेकार थे। Defying the gender ways and orthodox cultural practices of age, she put on male attire and appeared unveiled in public। उम्र के लिंग, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सांस्कृतिक प्रथाओं को धता बताते हुए उसने पुरुष पोशाक पहनी और सार्वजनिक रूप से अनावरण किया। द सक्सेसेड इन स्टेबलाइजिंग लॉ एंड ऑर्डर थ्रू आउट द एम्पायर।
वह पूरे साम्राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित करने में सफल रही। हर रूल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए पावर स्ट्रगल बिटवीन द सुल्तान एंड द चहलगनी। उसका शासन सुल्तान और चहलगनी के बीच एक सत्ता संघर्ष की शुरुआत को चिन्हित किया। द नॉवेल्स वर अपोज्ड टू रूल बाय ए फीमेल monarch and at the same time disapproved of the high positions she granted her Ethiopian slave Yakut। रईसों ने एक महिला सम्राट के शासन का विरोध किया और साथ ही उसने अपने इथियोपियाई दास याकूत को दिए गए उच्च पद को अस्वीकार कर दिया। दिस लीड टू ए रिवॉल्ट अगेंस्ट हर। इससे उसके खिलाफ विद्रोह हुआ। शी वॉज मर्डर्ड ए पार्ट ऑफ ए conspiracy by a nobles while she was on her way to reclaim her empire। जब वह अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के रास्ते में थी तब रईसों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। नसीरुद्दीन महमूद 1246-65 CE and Ziauddin Balban 1265-87 CE। Razia's death was followed by a struggle for power between a group of powerful Turkish nobles called the Çehelgani or the 40 nobles। रजिया की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। शक्तिशाली तुर्की रईसों का एक समूह जिसे चहलगनी या 40 रईस कहा जाता था। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वाज बलबन। इस समूह के प्रमुख सदस्यों में से एक बलबन था। Although Razia was succeeded by her brothers Nasiruddin Mahmud, the young prince was inexperienced। रजिया का उत्तराधिकारी उसका भाई नसीरुद्दीन महमूद था। युवा राजकुमार अनुभवहीन था। बलबन established himself as the real power behind the throne and overcame the positions of the other nobles। बलबन की स्थापना खुद को सिंहासन के पीछे की वास्तविक शक्ति के रूप में और रईसों के विरोध में काबू पाने के लिए। Having established himself in a position of power, he declared himself to be the Sultan in 1265 CE। विरोध पर काबू पाने के लिए खुद को सत्ता की स्थिति में स्थापित करने के बाद उन्होंने 1265 CE में खुद को सुल्तान घोषित किया। बलबन रूल्ड विथ एन आयरन। बलबन ने लोहे से शासन किया। हिज फर्स्ट टास्क वाज टू ब्रेक द पावर ऑफ द चहलगनी ग्रुप एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए सुप्रीम अथॉरिटी। उनका पहला काम चहलगनी समूह की शक्ति को तोड़ना और खुद को सर्वोच्च अधिकार के रूप में स्थापित करना था। ही सेट अप एन efficient spy system to ensure that everyone was loyal to the throne। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल जासूसी प्रणाली स्थापित की कि हर कोई सिंहासन के प्रति वफादार था। बलबन also increased the power and prestige of the monarch by introducing ceremonies like prostrations before the monarch। बलबन ने भी सम्राट के सामने साष्टांग प्रणाम जैसे समारोह की शुरुआत करके सम्राट की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। बलबन died in 1287 CE and his successors were weak and incompetent। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर और अक्षम थे। The throne of Delhi was captured by a noble called Jalauddin Khilji, who laid the foundation of the Khilji dynasty। दिल्ली के सिंहासन पर जलाउद्दीन खिलजी नामक एक रईस ने कब्जा कर लिया जिसने खिलजी वंश की नींव रखी। खिलजी द खिलजीज 1290-1320 AD।
Balwan's grandson was put to death by an official of the खिलजी tribe. फिरोज शाह। बलवन के पोते को खिलजी जनजाति के एक अधिकारी फिरोज शाह ने मौत के घाट उतार दिया था। द खिलजीज वर ऑफ अफगान ओरिजिन। खिलजी अफगान मूल के थे। However, new historians say that the Khiljis were in fact a Turkish tribe, though long settled in Afghanistan. हालांकि नए इतिहासकार का कहना है कि खिलजी वास्तव में एक तुर्की जनजाति थे, हालांकि लंबे समय से अफगानिस्तान में बसे हुए थे। जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी was the founder of the Khilji's dynasty. जलाउद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। He was very old when she became the king. जब वह राजा बना तब वह बहुत बूढ़ा था। He could not the rule of a long time. वह लंबे समय तक शासक नहीं कर सका। His nephew Alauddin Khilji murdered him and became the ruler in 1296 AD. उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और 1296 ईस्वी में शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी's AD 1296-1316. The 14th century African travels Ibn Battuta states that Alauddin Khilji deserves to be considered one of the best sultans. 14वीं सदी के अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में से एक माने जाने योग्य हैं। बट ही वॉज आल्सो नोन टू बी ए क्रूअल एंड रिजॉर्व्ड रूलर। लेकिन वह एक क्रूर और दृढ़ निश्चयी शासक के रूप में भी जाने जाते थे। अलाउद्दीन खिलजीज ambitions was to conquer the world like Alexander the Great, but they could not fulfill his wish. अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा सिकंदर महान की तरह दुनिया को जीतने की थी, लेकिन वह अपनी पूरी इच्छा पूरी नहीं कर सका। Conquest means विजय। One of the first expeditions he undertook was the Gujarat in AD 1297. उन्होंने 1297 ईस्वी में गुजरात के लिए पहला अभियान चलाया था। He annexed गुजरात, मालवा and मेवाड़ and captures the forts of रणथंभौर and चित्तौड़. उन्होंने गुजरात, मालवा और मेवाड़ पर कब्जा कर लिया और रणथंभौर और चित्तौड़ के किलों पर भी कब्जा किया। इन गुजरात ही secured the services of the annexed slave मलिक काफूर। गुजरात में उसने किन्नर गुलाम मलिक काफूर की सेवाएं ली। मलिक काफूर went on to become the general of Alauddin's armies. मलिक काफूर आगे चलकर अलाउद्दीन की सेना का सेनापति बना। He led a series of successful raids into the Deccan. उन्होंने दक्कन में कई सफल छापे मारे। He captured देवगिरी in AD 1307. उसने 1307 ईस्वी में देवगिरी पर कब्जा कर लिया था। He defeated the rulers of बांगरगल, द्वारसमुद्र और एंड मैस्योर। उसने बारंगर, समुद्र और मैसूर के शासकों को हराया। He even went deep down south and drained the wealth of मदुरई and रामेश्वरम। यहाँ तक कि उन्होंने दक्षिण की गहराई में जाकर मदुरै और रामेश्वरम की दौलत भी छीन ली। Alauddin thus became the first ruler from North India to extend his kingdoms south of the river नर्मदा। इस प्रकार अलाउद्दीन नर्मदा नदी के दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करने वाला भारत का पहला शासक बना। केस स्टडी। द तुगलक डायनेस्टी। जियाउद्दीन तुगलक
1320-25 CE. Alauddin Khilji's death in 1316 CE was followed by a period of political unrest. 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद राजनीतिक अशांति का दौर आया. The last Khilji ruler, Khusro Khan, was killed by Ziauddin Tughlaq, who founded in the Tughlaq dynasty in 1320 CE. अंतिम खिलजी शासक खुसरो खान की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की. An able statesman and administrator, Ziauddin believed that the state should be based on the support of the people. एक सक्षम राजनेता और प्रशासक गयाउद्दीन का मानना था कि राज्य लोगों के समर्थन पर आधारित होना चाहिए. He advocated a policy of tolerance instead of harsh punishments. उन्होंने कठोर दंड के बजाय सहिष्णुता की नीति की वकालत की. He carried out many works of public utility and built the famous तुगलकाबाद fort at Delhi. उन्होंने सार्वजनिक उपयोगिता के कई काम किए और दिल्ली में प्रसिद्ध तुगलकाबाद किले का निर्माण किया. He died in 1325 CE and was succeeded by his son Muhammad bin Tughlaq. 1325 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका उत्तराधिकारी बना दिया. तुगलक डायनेस्टी 1320-1414 AD. मोहम्मद बिन तुगलक 1324-51 CE. Muhammad bin Tughlaq was a ruler as well as a scholar. तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक होने के साथ साथ एक विद्वान भी थे. He was interested in logic, grammar, science and literature. उन्हें तर्कशास्त्र, व्याकरण, विज्ञान और साहित्य में रुचि थी. He had a deep sense of justice and an open mind. उनके पास न्याय की गहरी भावना और खुले दिमाग थे. मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर इंक्लूडेड द डेक्कन, द साउथर्न स्टेट, उड़ीसा एंड बंगाल. मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में डेक्कन, दक्षिणी राज्य, उड़ीसा और बंगाल शामिल थे. He administered the Deccan and the South directly. उसने दक्कन और दक्षिण को सीधे प्रकाशित किया. We get to know about his regions from the writings of Ibn Battuta, who visited India during his time. हमें उसके शासनकाल के बारे में इब्न बतूता के लेखन से पता चलता है जो उसके समय में भारत आया था. Let's us now look at some measures undertaken by Muhammad bin Tughlaq and how they affected the people. आइए अब हम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए कुछ उपायों को देखें और उन्होंने लोगों को कैसे प्रभावित किया. He is remembered for his decisions to shift the capital from Delhi to Devgiri, which he renamed दौलताबाद. उन्होंने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने के उनके फैसले के लिए याद किया जाता है, जिसका नाम उन्होंने दौलताबाद रखा. However, instead of just shifting the administrations, he forced the entire populations to shift. हालांकि उन्होंने सिर्फ प्रशासन को स्थानांतरित करने के बजाय पूरी आबादी को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया. Many people died due to the difficult journey and capital had to be shifted back 2 years later. कठिन यात्रा के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई और 2 साल बाद राजधानी को वापस स्थानांतरित करना पड़ा.
Another experiments that the Sultan introduced was that of token currency. एक और प्रयोग जो सुल्तान ने पेश किया वह था सांकेतिक मुद्रा का। टोकन coins were made of copper and could be exchanged with gold and silver coins from the treasury. टोकन सिक्के तांबे के बने होते थे और खजाने से सोने और चांदी के सिक्कों के साथ बदले जा सकते थे। However, people began forging the copper coins in large numbers of exchanges. हालांकि लोगों ने विनिमय के लिए बड़ी संख्या में तांबे के सिक्कों की ढलाई शुरू कर दी। द टोकन करेंसी सिस्टम वाज एबेंडन्ड। टोकन मुद्रा प्रणाली को छोड़ दिया गया था। When Muhammad bin Tughlaq died in 1351 CE, the empire was one on the way of collapse. जब 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो साम्राज्य पतन की ओर था। During these reigns, many revolts had taken place in different areas. उसके शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्रोह हुए। The size of the empire was so big that he was unable to control it. Communications was also poor. साम्राज्य का आकार इतना बड़ा था कि वह इसे नियंत्रित करने में असमर्थ था। संचार भी खराब था। Though the sultans had a visionary outlook, he failed to ensure proper executions of his ideas. हालांकि सुल्तान के पास दूरदर्शी दृष्टिकोण था, लेकिन वह अपने विचारों के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने में विफल रहा। He was succeeded by his cousins फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी संभाली। फिरोज शाह तुगलक succeeded Muhammad bin Tughlaq. He was a very soft ruler. फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना। वह बहुत ही कोमल शासक था। His policies were very moderate. For example, उसकी नीतियाँ बहुत उदार थीं। उदाहरण के लिए, punishments became less severe. दंड कम कठोर हो गए और loans granted by the earliest rulers were written off. पहले शासकों द्वारा दिए गए सभी ऋण बट्टे खाते में डाल दिए गए थे। He introduced the jizya, a tax on non-Muslims for giving them state protection. उन्होंने गैर मुसलमानों को राज्य संरक्षण देने के लिए जजिया कर की शुरुआत की। फिरोज शाह तुगलक did not strengthen the army. फिरोज शाह तुगलक ने तब सेना को मजबूत किया। However, he did a lot of welfare activities for his people such as. हालांकि उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी गतिविधियां की, जैसे कैनल्स एंड वायोलीज वर कंस्ट्रक्टेड। नहरों और बावड़ियों का निर्माण किया गया। ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द पुअर वॉज इस्टेब्लाइज्ड। गरीबों के लिए अलग विभाग की स्थापना की। वेरियस सैरीज एंड मद्रासेस वर बिल्ड। विभिन्न सराय और मदरसों का निर्माण किया गया। वर्कशॉप्स फॉर हैंडीक्राफ्ट्स वर सेटअप। हस्तशिल्प के लिए कार्यशालाएं स्थापित की गई। द डिजाइन्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक वाज ए पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल शांति और समृद्धि का काल था। ही एस्टेब्लिश्ड मैनी टाउन्स सच एज हिसार, फिरोजाबाद एंड फिरोजपुर। उन्होंने हिसार, फिरोजाबाद और फिरोजपुर जैसे कई शहरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक डाइड इन 1388 AD। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। आफ्टर हिज डेथ द तुगलक डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग।
उनकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। It was during the reigns of Nasiruddin Muhammad Tughlaq, the last ruler of the Tughlaq dynasty, that Timur, the Turk rule of Samarkand, invaded India in 1398। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान समरकंद के तुर्क शासक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। In 1399 के फाइनल ब्लो वाज गिवन टू द तुगलक एम्पायर। 1399 में तुगलक साम्राज्य को अंतिम झटका दिया गया था। द सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451 AD। Before Taimur left Delhi, he appointed Khilji Khan as his viceroy, who went on to establish the Sayyid dynasty after defeating the Tughlaqs। तैमूर के दिल्ली छोड़ने से पहले उसने खिज्र खान को अपना वायसराय नियुक्त किया, जिसने तुगलक को हराने के बाद सैयद वंश की स्थापना की। खिलजी खान took over as the Sultan of Delhi in 1414। खिज्र खान ने 1440 में दिल्ली के सुल्तान के रूप में पदभार संभाला। He ruled for 7 years and was succeeded by his son मुबारक शाह in 1421। उन्होंने 7 वर्षों तक शासन किया और 1421 में उनके पुत्र मुबारक शाह ने उनका उत्तराधिकारी चुना या बना दिया गया। याह्या बिन अहमद सिरहिंदी की तारिक मुबारक शाही गिव्स ए डिटेल्स अकाउंट ऑफ मुबारक शाह रिजाइंस। याह्या बिन अहमद सरहिंदी की तारिक मुबारक शाही मुबारक शाह के शासनकाल का विस्तृत विवरण देती है। द मुबारक शाह was succeeded by his nephews मोहम्मद खान, who ruled as सुल्तान मोहम्मद शाह। मुबारक शाह को उनके भतीजे मोहम्मद खान ने उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह के रूप में शासन किया। After his death, he was succeeded by his son and last ruler of the dynasty, अलाउद्दीन आलम शाह। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे और राजवंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। द लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526 AD। मुहम्मद शाह, the last ruler of the Sayyid dynasty, descended in favor of बहालुल लोधी। सैयद वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह बहलुल लोधी के पक्ष में उतरे। Then बहालुल लोधी founded the लोधी dynasty in 1451। जब बहलुल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी वर। लोधी वंश के प्रमुख शासक थे। बहलुल लोधी इन 1451 बहलुल लोधी was the governor of Punjab, occupied the throne of Delhi and ruler over Delhi for 37 years। 1451 में बहलुल लोधी, जो पंजाब के राज्यपाल थे, दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और 37 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। सिकंदर लोधी एक्सटेंडेड द थ्रोन इन 1488। सिकंदर लोधी 1488 में गद्दी पर बैठा। ही एनेक्स्ड जयपुर एंड बिहार एंड ब्रॉट द एंटायर रीजन्स ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स अंडर हिज कंट्रोल। उसने जयपुर और बिहार पर कब्जा कर लिया और गंगा के मैदानों के पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। इब्राहिम लोधी faced a lot of rebellions। राणा सांगा of Mewar was powerful in the western Rajasthan when Sultan suppressed him। इब्राहिम लोधी को कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। मेवाड़ का राणा सांगा पश्चिमी राजस्थान में शक्तिशाली था जब सुल्तान ने उसे दबा दिया।
Babur defeated and killed Ibrahim Lodi in the first Battle of Panipat, which marks the beginning of Mughal Empire in India. पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मार डाला, जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत में प्रशासन। द सुल्तान वाज द सेंट्रल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन इन द सल्तनत। सुल्तान सल्तनत में केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ही डिफेंडेड द एम्पायर अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स एंड मेंटेनेड लॉ एंड ऑर्डर। उसने बाहरी हमलों से साम्राज्य की रक्षा की और कानून व्यवस्था बनाए रखी। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ एम्पायर। वह सेना का कमांडर इन चीफ होने के साथ साथ साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश भी था। नंबर 2, नॉवेल्स एंड ऑफिशियल्स। कुलीन और अधिकारी। द सुल्तान्स कोर्ट was composed of officials who were responsible for effective functioning of the सल्तनत। सुल्तान का दरबार उन अधिकारियों से बना था जो सल्तनत के प्रभावी कामकाज के लिए जिम्मेदार थे। द डोमेन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर्स, कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू एंड कंप्लीट control of the revenue department were looked after by the wazir and his deputies. आय व्यय, राजस्व संग्रह और राजस्व विभाग के पूर्ण नियंत्रण का क्षेत्र वजीर और उसके प्रतिनिधि द्वारा देखा जाता था। The Aris-e-Mawalik along with the deputies looked after the employment of soldiers, their training and equipment. एरिज-ए-मुवालिक अपने कर्तव्यों के साथ सैनिकों के रोजगार, उनके प्रशिक्षण और उपकरणों की देखभाल करते थे। द हाउस होल्ड ऑफ द सुल्तान, द प्लेस गार्ड्स एंड द पर्सनल असिस्टेंट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द वालिक आयदार, while the Amir Hazib was the master of ceremonies at the court. सुल्तान का घर, महल के रक्षक और निजी सहायक वकील इदार के नियंत्रण में थे, जबकि अमीर हाजिब दरबार में समारोह का स्वामी था। द चीफ काजी हेडेड द जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट। मुख्य काजी न्याय विभाग का नेतृत्व करते थे। द नोवेल्स वर्कड क्लोजली विद द सुल्तान इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज द रूलर ऑफ द एम्पायर। जबकि साम्राज्य के शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में रईसों ने सुल्तान के साथ मिलकर काम किया। इन ऑर्डर ऑफ रैंक द खान्स वर द हाईएस्ट, फॉलोड बाय द मलिक्स एंड द अमीर्स। रैंक के क्रम में खानों का स्थान सबसे अधिक था, जिसके बाद मलिक और अमीर थे। The salaries of the nobles were arranged from the revenue assigned to them. रईसों के वेतन की व्यवस्था उन्हें सौंपे गए राजस्व से की जाती थी। According to the Iqta system, the land resources of the Sultanate were divided and given to the nobles in lieu of cash of their services. इक्ता प्रणाली के अनुसार सल्तनत के भूमि संसाधनों को विभाजित किया गया था और उनकी सेवाओं के लिए नकद के बदले रईसों को दिया गया था। इक्तादार्स कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स इन द विलेजेस यूजिंग द सेम टू मेंटेन द आर्मी। इक्तादार गाँव में किसानों से कर वसूल करते थे, उसी का उपयोग सेना को बनाए रखने के लिए भी करते थे। Number 3, army means सेना. The army was the significant components of the Sultanate since it aided the Sultan to sustain power, expand and defend his empire.
सेना सल्तनत का एक महत्वपूर्ण घटक थी क्योंकि इसने सुल्तान को सत्ता में बने रहने, विस्तार करने और अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सहायता की। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द इन्फेंट्राइज्ड और फुट सोल्जर्स, कैवलरी और हॉर्स सोल्जर्स, आर्चर्स एंड एलिफेंट्स। सेना में पैदल सेना या पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना या घोड़े के सैनिक, धनुर्धर और हाथी शामिल थे। द खिलजीस रूलर अलाउद्दीन मेंटेन्ड ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच सोल्जर्स नोन एज चेहरा एंड ब्रांच ईच हॉर्स इन हिज आर्मी नोन एज दाग। खिलजी शासक अलाउद्दीन ने चेहरा के नाम से जाने वाले प्रत्येक सैनिक का विस्तृत विवरण बनाए रखा और अपनी सेना में प्रत्येक घोड़े को दाग के नाम से जाना गया। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन केस ड्यूरिंग हिज रिजाइंस। उनके शासक काल में भू राजस्व नगद में वसूल किया जाता था। हैंड सोल्जर्स वर आल्सो पेड इन कैश। इसीलिए सैनिकों को नगद भुगतान भी किया जाता था। डिविजन्स ऑफ सल्तनत, सल्तनत का विभाजन। द दिल्ली सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज सूबास which were further divided into six paragons. Paragons were the subdivisions of the six which comprised several villages. दिल्ली सल्तनत सूबा के नाम से जाने वाले प्रांतों में विभाजित थी जिन्हें आगे शिकों में विभाजित किया गया था। परगना शिकों के उपखंड थे जिसमें कई गांव शामिल थे। द प्रोविंस वाज हेडेड बाय ए गवर्नर ऑफ मुक्ति वाइल द शिकदार वाज द हेड ऑफ शेका। प्रांत का नेतृत्व एक गवर्नर या मुक्ति करता था जबकि शिकदार एक शिक का मुखिया होता था। द एमिल वाज द हेड ऑफ द परगना। परगने का मुखिया आमिल होता था। द विलेज अकाउंटेंट ऑफ पटवारी मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, क्रॉप्स एंड टैक्सेस टू पेड। ग्राम लेखाकार या पटवारी भूमि की फसलों और भुगतान के लिए जाने वाले करों का रिकॉर्ड या अभिलेख रखते थे। डेक्लाइंस ऑफ द सल्तनत, सल्तनत का पतन। द सल्तनत्स वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। सल्तनत बहुत सफल नहीं थी। मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर वेरी सॉफ्ट एंड वीक विच लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर। अधिकांश शासक बहुत नरम और कमज़ोर थे जिसके कारण साम्राज्य का पतन हुआ। द रीजन्स वर मैनी सच एज। इसके कई कारण थे जैसे नंबर 1 द इम्पोजिशंस ऑफ जजिया, ए टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, conversions of the people of Islam, desecration of temples and other places of worship made the rulers unpopular. जजिया लागू करना, गैर मुसलमानों के लिए एक कर, लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों के विनाश ने शासकों को अलोकप्रिय बना दिया। नंबर 2 मैनी रूलर्स वर वीक विच मेड द नॉवेल्स एस्यूम्स पावर। कई शासक कमज़ोर थे जिन्होंने रईसों को शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए अपना बनाया। नंबर 3 द सक्सेशन वार आफ्टर द किंग डाइड वीकेंड द किंगडम। राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध ने राज्य को कमज़ोर कर दिया। नंबर 4 द इन्वेंशंस ऑफ फॉरेनर रूलर्स गेव द फाइनल ब्लो टू द एम्पायर। विदेशी शासकों के आक्रमणों ने साम्राज्य को अंतिम झटका दिया। नंबर 5 मैनी रिवॉल्ट्स लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम सच एज विजयनगर एंड बहमनी। कई विद्रोहों के कारण विजयनगर और बहमनी जैसे स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। रिकैपिटुलेशंस मीन्स पुनः पूंजीकरण। नंबर 1 द पीरियड बिटवीन 12
1506 to 1526 CE is referred to as the period of Delhi Sultanate in medieval Indian history. 1206 से 1526 CE के बीच की अवधि को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, द एंट्री ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रवेश ने सल्तनत की शुरुआत को चिन्हित किया। नंबर 3, सल्तनत पीरियड इंक्लूड्स 5 डायनेस्टीज। सल्तनत काल में 5 राजवंश शामिल हैं। देयर वर द स्लेव, द तुगलक्स, द सैयद, द लोदीज एंड द खिलजीज। वे गुलाम, तुगलक, सैयद, लोदी और खिलजी थे। नंबर 4, इल्तुतमिश वाज नोन एज द आर्किटेक्ट टू स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश की शिल्पी कहा जाता था। नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजीज इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकल एंड इनोवेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रिजाइंस। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में व्यवहारिक और नवीन आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक्स एक्सपेरिमेंट्स लैक्ड प्रेडेंस एंड एंडेड इन फेलियर। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में विवेक की कमी थी और वे असफलता में समाप्त हुए। नंबर 7, आफ्टर द तुगलक्स द सैयद्स एंड द लोदीज रूल्ड फॉर अबाउट ए सेंचुरी। तुगलक के बाद सैयद और लोदी ने लगभग एक शताब्दी तक शासन किया। नंबर 8, इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। इब्राहिम लोदी दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे। बाबर द किंग ऑफ काबुल डिफीटेड लोदी इन AD 1526 एंड इस्टेब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। 1526 ईस्वी में काबुल के राजा बाबर ने लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की। ये चैप्टर आपको मैंने अभी समझाया है। अब मैं आपको बुक वर्क में बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे नंबर 1 पे दिया गया है टिक मार्क MCQs, जिसमें आपके 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आपको नंबर 1 मतलब कि जैसे जो राइट आंसर होता है उसी पे आपको टिक लगाना है और उसको लर्न करना है। नंबर 2 पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 3 पर है आपका ट्रू फॉल्स और नंबर 4 पर 1 और 2 वर्ड्स हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो 1 या 2 शब्दों में आपको देने हैं। नंबर 5 पर दिया गया है ब्रीफ क्वेश्चंस मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नंबर 6 पे हैं आपके डिटेल मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये आपको इस चैप्टर में से आपको फाइंड आउट करना है और फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।